Hello everyone, I'm Ritu Jakhar. Welcome to my class. Today we are going to start exercise 4.2 properties of determinant. Already I sent one video yesterday to you related to these properties of determinants. Rather than we are revising these properties again. Firstly, first property is the value of determinant remain unchanged if its rows and columns are unchanged, right? So what he is saying here, he is saying row and column are interchanged means we are doing the transpose of that matrix. He is simply saying that if one matrix is given, we are dealing with square matrix obviously in the determinant chapter. So if any square matrix is given to you, if you will find out the determinant of that matrix like this, and if you will do the transpose of that matrix like this one, then determinant of both will be equal. Understood? Then second property is here. These are related examples you can do. So second property is if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes. What is the difference between these two properties? He is saying here that in first property he is saying कि we are changing row with columns and column with rows. That means we are doing the transpose there in the first property. But in the second property he is saying कि we are changing only two rows with each other or two column with each other, right? Then the sign of determinant changes. Understood? Be careful about it. See, if this determinant is given here, and we will find out the determinant by expanding, so you will get this value. Okay, you will get this value. Okay, and if you will take delta 1 here, delta 1 means new determinant, and what he had done here, he had changed first row at the first third row at the first place and first row at the third place. Row 1 and row 3 are interchanged with each other, and then he is expanding. Here he expanded the determinant by using first row, and here he expand the determinant by using third row, because we can expand the determinant by using any row or any column. Okay, what is the change here? The change of minus sign. Delta 1 means new determinant is equal to negative of old delta, old determinant, right? That means if we'll interchange two rows or two columns with each other, that means one negative sign will come outside, right? And if you will repeat this action two times, then two times negative will come outside, and negative, that will be positive sign. Understood? Come to the third property. We are doing these very fast because I sent one video earlier related to these properties. We are revising only. So third property is given here. If any two rows or columns of a determinant are identical means same, right? Means corresponding elements are same, then value of determinant is 0. If any two rows or two columns are equal, that means their corresponding elements are equal, that means value of that determinant is directly 0. No need of expanding there. Understood? Example is given here. Example 8 is given. First row is 3 to 3 and third row is again 3 to 3. That means two rows are identical. That means value of this determinant will be 0. Or you can see by column also. Second column is 2 to 2. Sorry, examples are columns are not identical. Only rows are identical. Right? First row and third row. So value will be 0 by using third property. Right. Next one is property number 4. If each element of a row or of a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. That means अगर आप एक पूरी रो को या पूरे कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी एक्सपेंड करने के बाद, वो भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज देखिए जब आप मैट्रिक्स में करते थे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो वो कांस्टेंट उसके मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते थे
जितनी भी रो, जितने भी कॉलम है, जितने भी टोटल एलिमेंट, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है, in the matrix. But now we are doing what? Determinant. Okay, so in the determinant he is saying according to this property, if each element of a row, that means one, he is talking about only one row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सिंगल रो को या सिंगल कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सी, दिस इज द डिटर्मिनेंट, ओके, एंड k इज द कांस्टेंट, सो k इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो ओनली, ओके. एंड व्हेन यू विल एक्सपेंड दिस वन बाय यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आप उसी रो से एक्सपेंड करें जिसको मल्टीप्लाई किया, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें इसको, तो डायरेक्ट जो आप एक्सरसाइज 4.1 में एक्सपेंड करते थे, एक्सपेंड करेंगे इसको पूरे को, तो k है वो थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, ठीक है. और k कॉमन आने के बाद जो अंदर वैल्यू बचेगी ये वाली, वो किसके इक्वल आएगी, डेल्टा के साथ इक्वल. डेल्टा क्या है, जो अब जब आप अगर आप इसको एक्सपेंड करते विदाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ k, जो इसकी वैल्यू आती दैट इज़ डेल्टा. दैट मीन्स जो न्यू डिटर्मिनेंट आया आपका k से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो जो ओल्ड डिटर्मिनेंट आएगा, जो प्रीवियस इनिशियल मैट्रिक्स थी हमारे डिटर्मिनेंट था, उसके साथ k से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट मीन्स इसका एक मीनिंग और क्या निकलेगा अभी, कि आप किसी भी, यहाँ पे आपने क्या किया, किसी कांस्टेंट को अंदर एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, इसका अपोजिट करेंगे, तो अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे होता तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं बाहर, ठीक है. दैट मीन्स इससे आपका रिमार्क्स निकलेंगे. रिमार्क्स क्या निकलेगा, फर्स्ट remark is, by this property we can take out any common factor from any one row or any column of a given determinant. This is the property में, ओके. इसका मतलब है कि आप किसी भी रो को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिंगल रो को, या किसी कॉलम को करना चाहे कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से. और अगर ऑलरेडी वो नंबर अंदर पड़ा हुआ है, कोई नंबर कॉमन आ रहा है किसी रो में से या कॉलम में से, तो आप उस नंबर को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से बाहर कॉमन ले सकते हैं. अंडरस्टूड. आपको पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक, अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वो गिवन है तो आप सिर्फ एक रो को या एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं. अंडरस्टूड. देन सेकेंड रिमार्क क्या बना इसकी हेल्प से, इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से, if corresponding element of any two rows or two column of a determinant are proportional, then its value is 0. सी, इससे पहले जो प्रॉपर्टी की थी हमने थर्ड वन, उसमें हमने किया था कि corresponding element of two rows or two column are identical, अगर दो रो आपकी सेम है या दो कॉलम सेम है तो वैल्यू 0 हो जाती है. अब हमने इस प्रॉपर्टी में क्या किया फोर्थ में, कि किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से जो कॉमन नंबर होता है, जो कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स जो नंबर कॉमन मल्टीपल होता है उनका, वो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. तो अगर हमने वो नंबर कॉमन ले लिया, जो एलिमेंट बाद में बचेंगे कॉमन लेने के बाद, अगर वो दूसरी रो या दूसरे कॉलम के साथ प्रोपोर्शनल है या इक्वल हो जाते हैं उसके बाद, दैट मीन्स फिर भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सी बाय example 9 is given here. Suppose this is given, right? So 1 0 2 18 and 36. Second row is 1 3 and 4. Third one is 17 3 and 6. What he has done here, first row को इसने convert कर दिया. 102 है, उसको लिख सकते हैं आप 6 into 17. 17 and 6 है 102. 18 को लिखेंगे 6 into 3 and 36 को लिखेंगे 6 into 6. What is common number? 6. So 6 you can take outside. So 6 he has taken outside. 6 he has taken outside. What is remaining in the first row? 17 3 and 6, and third row already it was 17 3 and 6. That means these two are equal now. And here what are these? Here these are proportional only. तो proportional अगर होंगी तो भी हम आप वो नंबर जो कॉमन नंबर है उनमें से कॉमन ले लेंगे, उसके बाद वो आइडेंटिकल बन जाएंगी, और आइडेंटिकल बनते हैं उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0. दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी उसमें आइडेंटिकल होनी चाहिए थी दो रो या दो कॉलम, और 4 के अकॉर्डिंग कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपके प्रोपोर्शनल भी हैं तो प्रोपोर्शनल होने के बाद भी उनकी पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 0. अंडरस्टूड. कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज हियर, इन सम और all
element of a row of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant. See by example, you can understand by example only. See, if this determinant is given, right, second row is single element are there, third row also single elements are there, but what about first row? Element of first row are expressed in term of sum of two elements, right? So he is saying, according to this property, that we can break these element into two determinants, right? How? Second row and third row was already single, right? So you will write these second row and third row same in both determinants, right? See, you can see easily second row and third row here, these are same, and here also these are same. There is no change in the single elements. But what about the first? You will break the first row. First elements will remain in the first determinant, and second corresponding element will go in the second determinant. So in this way you can break one determinant into two determinants. Understood? If there are three elements, you can break into three. If there are four elements, sum of four elements, you can break into four determinants, right? But you have to break these kind of determinant one by one, right? You can break one row or one column in one time. Understood? Come to the next example of this one is given, this example of this property. So you can break example number 10 easily, right? And here two properties he used in example number 10. This was given. So here second row is given in the term of sum of two numbers. So you will break into two parts. How? First row and third row will be same in both, and second row you will break. First element will be here and second element will be here, right? In first determinant you can see first row and second row are identical. That means value of this will be 0. Then here if you can take 2 common from the second row, and what will be here? X, Y and Z, and that will be identical with third row. Or you can apply the rule of proportionality here, जो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी का रिमार्क्स आपने किया था कि ये दोनों अगर प्रोपोर्शनल भी हैं तो भी वैल्यू 0 हो जाती है. दैट मीन्स 0 + 0 टोटल वैल्यू विल बी 0. अंडरस्टूड? लास्ट प्रॉपर्टी इज इफ each element of any row, this is very simple, this already you had done when we were doing inverse of a matrix in the last chapter, last exercise, when we are doing 3.4 a is equal to ia we have written. then आपने a के ऊपर प्रॉपर्टीज या तो रो ऑपरेशन अप्लाई किए थे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने अप्लाई किए थे, और उनकी हेल्प से आपने a जो मैट्रिक्स थी लेफ्ट हैंड साइड पे उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था. ठीक है, उन्हीं ऑपरेशंस की ये बात कर रहा है कि अगर आप किसी भी रो में कोई दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर किसी कॉलम के ऊपर ऐसी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है. अंडरस्टूड? सो दिस प्रॉपर्टी इज सेम. कम टू द नेक्स्ट. Remarks are here. Remarks are not important because these remarks are related to these properties only. Nothing important is here. So come to the examples. Okay, our today's lecture is starting from here only because properties already we discussed in the last video. Okay, see these questions very very carefully. And what is our purpose in these type of questions? Question will be directly asked to you that expand this determinant by using properties. If by properties it written in the questions, then you cannot expand that determinant directly. Directly means whatever we had done in the exercise 4.1. If by using properties is written in the question, then you have to apply these 6 properties, any one of property, right? And what is our focus in these type of question? What is our approach? Our approach will be to make one most
wanted trick is here that we want to convert any row or any column into 1 1 and 1. Okay, and why 1 1 1? Because in the very starting of these properties of determinant, it is written that our approach is to make maximum number of zeros in any row or any column. ये हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे बन जाएं. क्यों बन जाएं? क्यों चाहिए हमें ज़ीरो? क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था 4.1 में, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, जब फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंड करते हो आप, ठीक है, पहले फर्स्ट एलिमेंट आता है, फिर उसके इनटू में क्या आता है, आप उस रो उस कॉलम को छोड़ देते हो, फिर जो बाकी 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट बनता है उनकी मल्टीप्लिकेशन, फिर सिमिलर पैटर्न सेकंड एलिमेंट के साथ होता है, फिर सिमिलर पैटर्न थर्ड एलिमेंट के साथ होता है, बाहर एलिमेंट आता है, उसके इनटू में 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आता है. ठीक है, अब मैंने ये बोला आपको कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनाने हैं किसी रो में या किसी कॉलम में. ठीक है, क्योंकि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपके उस रो या किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बन जाते हैं, मान लिया 3 एलिमेंट है, 3 में से 2 आपके ज़ीरो बना लिया आपने, और आप फिर उसी रो या उसी कॉलम की हेल्प से उसको एक्सपेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो वह एक ही एलिमेंट बचा ना उसमें, तो एक ही एलिमेंट आएगा बाहर, और इनटू में क्या आ जाएगा, उस रो को छोड़ दो, उस कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट बचेगा सिर्फ उसी से आपको उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. बाकी दोनों एलिमेंट तो ज़ीरो हो गए, और अगर एलिमेंट ज़ीरो हो गए तो उसके इनटू में चाहे कोई डिटर्मिनेंट बने चाहे ना बने तो ज़ीरो हो गया ना. दैट मीन्स जो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हम सोल्व करते थे 4.1 में, जो 3 पोर्शन में होता था, 3 एलिमेंट है तो 3 पोर्शन में होता था, A11 इनटू में, फिर उसका 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, सिमिलरली आई टोल्ड यू नाउ. तो उसमें से अगर 2 एलिमेंट ज़ीरो हो गए तो 2 पोर्शन तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आपको एक पोर्शन सोल्व करना पड़ेगा. यही मेन पर्पज़ है इन 6 प्रॉपर्टीज़ का. ठीक है, कुछ तो डायरेक्टली अप्लाई होती हैं, जैसे 2 रोज़ 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए तो वो डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगी, 1 रो पूरी ज़ीरो होगी तो भी वो ज़ीरो हो जाएगी, प्रोपोर्शनल होगी 2 रोज़ तो भी वो ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, तो इस टाइप से अप्रोच हमें फॉलो करनी है, और प्रॉपर्टीज़ को खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है. फिर भी आपको समझना है तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आपकी अप्रोच रहेगी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो बनाने हैं. ठीक है, now come to the questions, and this is very important exercise. 1 6 mark question every year come from here. Okay, so do practice and see these examples carefully. Example number 11. This determinant is given, we have to prove equal to a cube, right? So let's start. अब आपको ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, जैसे मैंने अभी बताया था 6 प्रॉपर्टी में ऑपरेशन दे रखे थे, जो ऑपरेशन आप इन्वर्स के लिए अप्लाई करते थे. अब आपको ये डिटर्मिनेंट दिख गया. ठीक है, ये डिटर्मिनेंट दिखने के बाद आपको पता चल गया, मैंने अभी आपको बताया कि आपको मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाने हैं. यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे सिर्फ a है आपके पास. क्या a की हेल्प से बी ज़ीरो बन सकता है? नहीं बन सकता. तो इधर नहीं देखेंगे आप, इधर देखो, क्या ये ज़ीरो बन सकता है? कैसे करके? यस, ए को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये ज़ीरो बन जाएगा ईजिली. सिमिलरली यहाँ पे 3a अगर है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, ज़ीरो बन जाएगा. तो यही ऑपरेशन अब आपको पता तो चल गया ओरली. तो अब इनको लिखेंगे कैसे? ठीक है, देखो, आपको इसको ज़ीरो बनाना है, दैट मीन्स सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट इसको ज़ीरो बनाना है. ये है क्या, 2a है. अब आपको ये पता चल गया था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई होगा? सेकंड रो पे, क्योंकि आप सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करें, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आपको ज़ीरो बनाना है. देखो लिखोगे कैसे, R2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है. क्या ऑपरेशन है? R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 2R1, क्योंकि 2 से इसको मल्टीप्लाई करके तभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये ऑपरेशन हमने फर्स्ट लिख दिया. ठीक है, अब आपको इसको भी साथ साथ में ही ज़ीरो बनाना था. साथ साथ में ज़ीरो बनाएंगे तो इसके ऊपर ऑपरेशन क्या लगेगा, ये थर्ड रो का एलिमेंट है, तो ऑपरेशन किस पे लगेगा? थर्ड रो पे. तो R3 पे ऑपरेशन लग रहा है. क्या ऑपरेशन लग रहा है? R3 में से सब्ट्रैक्ट होना है क्या, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है. अंडरस्टूड? ये ऐसे आप ऑपरेशन को राइट करेंगे. देन कम, अब ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद होगा क्या,
देखो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है R2 और R3 पे, दैट मीन्स R1 में कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो R1 गिवन थी आपकी, R1 को सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। ओके, आपका थोड़ा ये हो जाएगा कि हाँ हमने कुछ एलिमेंट तो लिख दिए हैं इसके अंदर, जो बचा है उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 1 बाय 1। सी, अब सेकेंड रो पे क्या एलिमेंट से क्या ऑपरेशन है, सेकेंड रो माइनस 2R1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये 2a माइनस 2a 0 बन जाएगा। या तो फिर इनके ऊपर भी अप्लाई करने हैं, यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तीनों एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। ये ऐसा नहीं है कि इस पे अप्लाई होगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड एलिमेंट में से, तो यहाँ पे आपका बचेगा a। अंडरस्टूड। सिमिलरली आप थर्ड एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा, दैट विल बी 2a प्लस b। अंडरस्टूड। अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको नेक्स्ट भी समझ आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऊपर। ये तो हो गया हमारा। R3 पे ऑपरेशन है, R3 माइनस 3R1। सी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये तो 0 बन गया। सेम ऑपरेशन इसके ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों को और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आएगा आपका 3a, ठीक है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बनेगा आपका 7a प्लस 3b। अंडरस्टूड। बस ये आपने मैक्सिमम काम यहाँ तक ख़त्म कर लिया है। तो उसके बाद आपको क्या करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनाने थे, एक किसी रो या किसी कॉलम में। तो किस कॉलम में बने आपके, आपने 2 ज़ीरोज़ बनाए फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो अब आप एक्सपेंड कर देंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये सोल्व करने की भी नीड नहीं थी, ठीक है। ये सोल्व करने की नीड नहीं है, ये जो ऑपरेशन अप्लाई किया है इसने, इसकी भी कोई नीड नहीं है हमें, ठीक है। इसके बिना आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ के बाद डायरेक्टली, क्योंकि आपने एक रो में 2 ज़ीरो बना दी है। 2 ज़ीरो बनाना एनफ है हमारे लिए किसी रो या किसी कॉलम में, ठीक है। अगर किसी रो या किसी कॉलम में 2 ज़ीरो बन जाते हैं, दैट मीन्स एक ही एलिमेंट बचा ना, उसकी हेल्प से आप उसको एक्सपेंड कर देंगे। नो नीड ऑफ दिस ऑपरेशन। अंडरस्टूड। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करें, तो डायरेक्ट एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड करें तो फर्स्ट एलिमेंट दिस a, राइट। और इनटू में क्या आएगा, इनटू में क्या आएगा बताओ। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों छोड़ देंगे, तो ये जो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बचा है ये यहाँ पे आ जाना था। अब ये चेंज क्यों आ रहा है आपका, ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका आंसर सेम आएगा। तो ये 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट बचा दिस माइनस दिस, इसको यहाँ पे रख देंगे, सोल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सो सी केयरफुली। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने खुद ने वहाँ पे 0 0 बनाए थे, ठीक है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न रहता है, मोस्ट फेवरेट पैटर्न रहता है यहाँ पे, वो रहता है ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है। कौन सा पैटर्न, ये 1 1 1 वाला, ठीक है। अगर ये आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में पूरा 1 1 एंड 1 का पैटर्न दिखे, दैट मीन्स वो ईजीएस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। क्यों मैं ईजीएस्ट बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये पैटर्न गिवन नहीं होगा तो आपको ये बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। और वो बनाना जो पड़ेगा ना, उसमें थोड़ा सा आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 1 1 1 कैसे बन सकता है। यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, तो पहले हम सीख लेते हैं कि 1 1 1 वाले को कैसे सोल्व किया जाए, फिर हम आगे मूव करेंगे कि 1 बनाना कैसे, ठीक है। सी, अगर आपको 1 1 1 गिवन है सबसे पहले, तो आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम 0 चाहिए होते हैं। आप तो इसी ट्रिक पे काम कर रहे हो ना, ठीक है। अगर आपको 1 1 1 चाहिए, इसने बाकी ये दूसरे फॉर्मूले से कर रखा है, ठीक है। बाकी इसका 1 1 1 का पैटर्न बता देती हूँ मैं आपको क्या रहता है। 1 1 एंड 1 है तीनों जगह, तो सेम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके 0 इजीली बन जाता है, ठीक है। तो इसमें से ये वाला 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें से भी ये वाला 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट वाला, ठीक है। यानी कि ये कौन सा क्या है, ये सेकंड कॉलम है और ये क्या है, ये थर्ड कॉलम है। तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों में से ही, ये सेकंड कॉलम था आपका और थर्ड कॉलम था, थर्ड कॉलम में से भी आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और थर्ड जो कॉलम है उसमें से भी आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे। जब ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे आप, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और जब ये दोनों 0 बन जाएंगे फिर आप इसकी हेल्प से इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। ये पैटर्न रहता है। बट इसमें एक और पैटर्न बन रहा है जो ज़्यादा ईजी है। उसने क्या किया, सी, यहाँ पे x और y है आपके पास और सेकंड में क्या है z,
यहाँ पे y और z है और यहाँ पे क्या है x, मतलब वहाँ पे x की कमी थी तो नीचे x गिवन है, यहाँ पे z की कमी थी तो नीचे z गिवन है। सेम यहाँ पे x और z है, यहाँ पे नीचे y गिवन है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई जेड बन जाएगा, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड बन जाएगा, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड बन जाएगा, सेम एलिमेंट बन जाएंगे तीनों। इजी। तो करो आर ऑपरेशन क्या बनेगा, हम ऐड किस में कर रहे हैं, R2 को R1 में ऐड कर रहे हैं। तो ऑपरेशन लिखा हमने, R1 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है, R1 प्लस R2, चेंज किस में आ रहा है, R1 में। तो R2 को सेम कॉपी कर लो, R3 को सेम कॉपी कर लो ऊपर से, ठीक है। बचा R1, तो R1 क्या आएगा, R1 पे तो ऑपरेशन है क्या, R1 प्लस R2, तो इन दोनों को ऐड करके लिखो तो क्या बनेगा, हर जगह क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेम एलिमेंट बन गया। अब आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टीज़ में कि आप सेम एलिमेंट को क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो ऐसा एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से किसी भी रो में किसी भी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं ना, तो आप फर्स्ट रो में से कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 एंड 1। फिर क्या बनेगा, फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे और वैल्यू क्या बनेगी, 0। अंडरस्टूड। यहाँ पे इसने डायरेक्ट लिख दिया है कि R1 और R3 प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू देगा वो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अंडरस्टूड। अब जो पैटर्न मैं बता रही थी आपको एग्जाम्पल नंबर 12 में, वो एग्जाम्पल नंबर 13 में गिवन है। सी हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि जब 1 1 1 का पैटर्न होगा तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 2 को 0 बनाएंगे, उनमें से 2 को 0 बनाएंगे, ठीक है। तो 2 को जैसे आप 0 बनाओगे, दैट मीन्स ऑपरेशन आपका क्या लगेगा, R2 के एलिमेंट को 0 बनाओगे तो R2 माइनस R1, R3 के एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाओगे इन दोनों को, तो R3 माइनस R1, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आप अप्लाई कर देंगे। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद दैट मीन्स 1 माइनस 1 फर्स्ट एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट होएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट होएगा ये दो, तो क्या बन जाएगा, 0। बी माइनस सी, सॉरी फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बी माइनस ए, देन सी ए माइनस बी सी, तो ये सी कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे करेंगे, थर्ड रो में भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो सेकंड रो है पूरी, उसमें से बी माइनस ए कॉमन आ रहा है। अब कहेंगे जी बी माइनस ए तो है नहीं, बट सी, यहाँ पे तो 0 के मल्टीप्लाई में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये बी माइनस ए है और यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लें ब्रैकेट में से, तो बी माइनस ए बन जाएगा। तो बी माइनस ए थ्रू आउट सेकेंड रो में से कॉमन चला जाएगा। सिमिलरली थर्ड में से आपका सी माइनस ए कॉमन चला जाएगा, तो ये वैल्यू और जो कॉमन जाएंगे वो बाहर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे ब्रैकेट में, ये वाले दोनों एलिमेंट बाहर आ जाएंगे। तो अंदर जो बचा आपका 1 0 0, देन ए 1 1, जो भी वैल्यू है वो ये बच जाएंगे। अब उस जो 1 1 1 0 0 बन गया है ये वाला, तो फर्स्ट कॉलम में बना है, तो फर्स्ट कॉलम की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे तो एक ही एलिमेंट बचा ना उधर, तो उसके इनटू में उसका जो भी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बनता है वो आ जाएगा। दैट मीन्स दिस वन एंड 2 में दिस वन इनटू दिस, यू विल लीव दिस वन एंड दीज 4 एलिमेंट विल कम है। तो इन दोनों एलिमेंट, चारों एलिमेंट का जो डिटरमिनेंट बनेगा 2 क्रॉस 2 का, वो क्या बनेगा, माइनस बी एंड माइनस सी, दैट मीन्स माइनस बी प्लस सी। तो ये पूरा एक्सपेंड हो गए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कम टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में बेटे आपका 1 1 1 का पैटर्न है नहीं, ठीक है। अगर आप 1 1 1 बनाने की ट्राई करें तो आप ट्राई कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले 1 1 1 क्यों बना रहे हैं हम, ताकि 1 1 1 की हेल्प से 0 0 बन जाए, 2 zeros बन जाए, इसलिए बना रहे हैं। अब 1 1 1 ट्राई करते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। देखो अगर इन तीनों को ऐड करने की कोशिश करो आप, तो क्या बनेगा, 2b प्लस 2c। इधर ऐड करने की कोशिश करो तो 2a प्लस b प्लस c। इधर आपने ऐड किया तो फिर इनको भी ऐड करना पड़ेगा, इनको भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो सेम एलिमेंट यहाँ पे बन जाए, ठीक है। बट वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इधर आप तीनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो बनेगा 2a प्लस b प्लस c। यहाँ पे ऐड करेंगे तो a प्लस 2b, वो 2b बनेगा, 2a नहीं बन रहा, तो सेम तो सिमिलरिटी नहीं बन रही। सिमिलरली ऐसे भी नहीं बनेंगे वो, ठीक है। तो अगर नहीं बन रहा कॉमन एलिमेंट, नहीं ऐड करके भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट 0 बनाने की ट्राई करो। डायरेक्ट 0 कैसे बन सकता है, देखो ये यहाँ पे b है, ये b है, ये c है,
दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा ना, ठीक है। कम से कम उसको तो 0 बनाओ। तो ये ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे, ये कर दिया, ये इन्होंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया R1 के ऊपर, क्योंकि यही तो 0 बनाना था। इसमें से R2 और R3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट मीन्स ऑपरेशन सिर्फ R1 पे है, R1 पे ऑपरेशन है, तो आप R2 और R3 को सेम टू सेम कॉपी कर देंगे और R1 के ऊपर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। जो भी R2 और R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे यहाँ वाले, इन दोनों को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ वालों को यहाँ पे जो एलिमेंट था उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को यहाँ पे जो एलिमेंट था उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये न्यू डिटरमिनेंट आपका बन जाएगा, ठीक है। अब और इसमें 0 नहीं बन पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट या तो फर्स्ट कॉलम से या फिर फर्स्ट रो से या फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। किसी से भी कर दो, किसी से भी करेंगे तो ये तो लिखने की नीड है नहीं, इसने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो ये लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि एलिमेंट ही 0 बन गया तो उसके इंटू में कुछ भी आए 0 बनेगा। सिर्फ आप इन दोनों के इंटू में इनके 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट लिख देंगे, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट आपको पता है कि नेगेटिव आता है, ये वो नेगेटिव, फिर ये एलिमेंट और इसके इंटू में इन दोनों को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बच गए इनका डिटर्मिनेंट। सिमिलरली है थर्ड एलिमेंट, इंटू में इसका ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इनको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वन इज 0, शो दैट, ये आपको शो करना है। ये ऑलरेडी 0 दे रखा है, 0 दे रखा तो इसको एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी जिसमें एडिशन गिवन था, एडिशन की फॉर्म में जो गिवन थी, तो वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी 5, ओके। तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट गिवन है। ब्रेक कैसे करते हैं, जो सिंगल एलिमेंट है वो सिंगल रहते हैं, सेम टू सेम रहते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट्स में सेम रहेंगे। जो थर्ड है वो ब्रेक हो जाएगा बीच में से, फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट में चले जाएंगे और सेकंड है वो सेकंड में चले जाएंगे, ठीक है। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ये जो था आपका, इसमें देखेंगे फर्स्ट रो में से x कॉमन आ रहा है, सेकंड में से y, थर्ड में से z, तो x y z कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। अंडरस्टूड? व्हाट विल डू विद दिस वन, ठीक है। अब देखें अगर ध्यान से तो ये दोनों सेम है, देखो, ठीक है। एलिमेंट सेम है बट उनकी पोजीशन सेम नहीं है। जो 1 1 1 की रो, ये तो ऑटोमेटिकली आई है ना आपकी, ठीक है। तो इसकी ये जो आई है इसके साथ में इसको मैच करने के लिए आप इसके कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेंगे। दैट मीन्स इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। जो थर्ड कॉलम है आपका उसको फर्स्ट पे चाहिए तो थर्ड को फर्स्ट पे ले आओ, फर्स्ट को थर्ड पे ले जाओ, ठीक है। फिर उससे भी काम नहीं चला क्योंकि ये आपको थर्ड पे चाहिए सेकंड वाला, तो फिर इसको चेंज कर दो और इसको चेंज कर दो। दैट मीन्स 2 बार चेंज हुआ है आपका, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा अंदर और ये कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये दोनों सेम हो गए हैं डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट है वो कॉमन आ जाएगा पूरा का पूरा। और अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बच गया 1 क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 और ये XYZ, ठीक है। उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करो क्योंकि आपके पास पैटर्न कौन सा है, 1 1 1 का पैटर्न है, तो 2 को 0 बना के आप इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करो, 2 को 0 बनाया, ऑपरेशन वही अप्लाई होंगे जो लास्ट में किया था अपने, R2 - R1 R3 - R1। एक की हेल्प से ही 0 बनाने हैं, जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे ना, R1 जिसको आप सेम रख रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी दोनों में से, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे इस एलिमेंट की हेल्प से, तो दिस एलिमेंट इनटू दिस माइनस दिस, राइट। तो एक्सपेंड करने के बाद ये आपका बन गया। इसने कॉमन भी लिया है, अभी कॉमन नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये कॉमन ले रखा है यहाँ पे, ये जो है ना, तो सेकंड रो और थर्ड रो में से एक फैक्टर कॉमन ले रखा है। नहीं भी कॉमन ले लेंगे तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आपका सोल्व हो जाएगा। ये जैसे ही 0 0 बन जाते हैं तो हम डायरेक्ट सोल्व करने पे ही जाते हैं। तो 1 × में दिस माइनस दिस 1 सॉरी। तो जैसे आपने सोल्व किया आपके पास ये वाले फैक्टर्स बन जाएंगे, तीनों 4, एक तो ऑलरेडी बाहर था ना, 3 ये बन जाएंगे। तो ये इक्वल टू किसके साथ गिवन था, 0 के साथ, तो
एक्स और वाई इन तीनों फैक्टर में से किसी को भी जीरो के साथ इक्वेट करोगे, यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू एक्स, फिर आएगा z इज इक्वल टू एक्स, फिर आएगा z इज इक्वल टू वाई, और क्वेश्चन में ही गिवन था कि x y z आर डिफरेंट। दैट मीन्स क्या ऑप्शन बचा हमारे पास कि 1 प्लस एक्स वाई प्लस जेड 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। वही हमें क्या करना था, शो करना था। अंडरस्टूड। लास्ट एग्जाम्पल सी 1 प्लस डिटर्मिनेंट इज गिवन दिस वन, आपको शो करना है इसके साथ इक्वल। कभी कभी क्या होता है बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना होता है, जो राइट हैंड साइड होती है वहाँ से भी हिंट लेना पड़ता है कि प्रूव किसके साथ इक्वल करना है, हम क्या बनाएं उसमें। अब यहाँ पे 1 1 1 नहीं है, 2 1 तो दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये 1 प्लस ए है, ठीक है। अब ऐसे ऐड करें तो भी ये 3 प्लस ए बनेगा, ऐसे ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे 3 प्लस बी, इनको ऐड करेंगे 3 प्लस सी, सेम तो नहीं बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करेंगे तो भी नहीं बनेगा वो। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हिंट लेंगे राइट हैंड साइड से कि हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। तो इसकी हेल्प से हमें क्या हिंट मिला कि हमें 1 प्लस 1 बाई ए चाहिए। तो या तो आप क्या करें, ये जो फर्स्ट रो है इसको ए से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि इसको ए से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 1 बाई ए, ये भी 1 बाई ए, ये भी 1 बाई ए, ठीक है। तो इसको 1 बाई बी से करेंगे, इसको 1 बाई सी से करेंगे। करो, चलो लिखा हुआ है। डिवाइड करने का मतलब कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन का मतलब भी वही है कि कॉमन ले लिया उसको। ए बी सी को कॉमन, ए को फर्स्ट रो में से कॉमन लिया है, बी को सेकंड में से कॉमन लिया और सी को थर्ड में से। तो फर्स्ट में से ऊपर दिखा देती हूँ मैं आपको डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट था आपका। इसमें से अगर ए कॉमन लें तो क्या बनेगा, 1 बाई ए प्लस 1, ये 1 बाई ए, ये 1 बाई ए, ओके। सिमिलरली यहाँ पे बी कॉमन लिया इसमें से तो ये बन जाएगा 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी। यहाँ से यहाँ से सी कॉमन ले लिया तो ये 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1, ठीक है। जो कॉमन लिए वो क्या आ गए, बाहर आ गए, ओके। अब इसके बाद देखो, वो भी हमें यहीं से हिंट मिलेगा राइट हैंड साइड से ही। क्या चाहिए, 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। तो अगर इसको रोज़ को ऐड कर दें हम, रोज़ को ऐड करने का मतलब है इनको ऐड कर दें ऐसे, ठीक है। तो काम बन सकता है। इन चारों एलिमेंट को, तीनों एलिमेंट को ऐड किया, इन तीनों को फिर वही ऐड किया, इन तीनों को वही ऐड किया, सेम एलिमेंट है ना। तो आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो आपने ऐड किया, किस में चेंज आया, R1 में। R1 में क्या चेंज आया, तीनों रो को ऐड कर दिया। तीनों रो को ऐड करने का मतलब है दिस प्लस दिस प्लस दिस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। तो ये तीनों ऐड होके यहाँ पे चले गए, ठीक है। रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको आप सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। रो 1 में चेंज आ रहा है खाली, तो रो 1 में चेंज क्या है आपका, इनको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके ये लिख दिया आपने 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, सेम दिस ऑल्सो। तो ये जो फर्स्ट रो है अब वो आपकी सेम बन गई है, ठीक है। ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट सेम है, तो इसको कहाँ पे उठा लेंगे, बाहर उठा लेंगे, बाहर ले जाएंगे। ए बी सी ऑलरेडी पड़ा हुआ था बाहर, और दूसरा एलिमेंट चला जाएगा ये जो आपने कॉमन लिया है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, फर्स्ट रो में क्या बन गया, 1 1 एंड 1। उसके बाद आपको पता ही ये पैटर्न, 1 1 1 के बाद तो आप इसको 0 बनाओ, आप इसको 0 बनाओ, ठीक है। जो यहाँ पे 1 था ना उसको 0 बनाओ, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो और इसी को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट मीन्स ये ऑपरेशन लग जाएगा C2 पे और C3 पे, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। जब 2 0 बन जाएंगे उसके बाद ये जो फर्स्ट एलिमेंट बचेगा इसकी हेल्प से एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा इनटू में, उसकी हेल्प से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स 1, ठीक है। ये थी आपकी एग्जाम्पल्स। यू कैन ट्राई द एक्सरसाइज and give me doubts tomorrow, right? In this week up to Sunday, try to complete this exercise very carefully, 2 or 3 times, right? If you will complete this exercise or if you will understand this exercise properly, that means you earn your 6 marks. You have done your 6 marks question from the exam, right? So all the best and try to complete the exercise 4.2. Thank you very much.